SC/ST बहुत ही महत्वपूर्ण है और कई दिन से लग रहा है। और सबसे सर एक चीज, दूसरी चीज सदानंद गौड़ा जी को बधाई देना चाहते हैं कि यहाँ पे कानून बना ही नहीं रहे बल्कि जो गैर जरूरी कानून है उसको खत्म भी कर रहे हैं, इसलिए SC/ST भी ले लिया जाए। सर, हमने पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर को 2 दिन से वादा किया है कि ये बिल जरूरी है, हम इसका समर्थन करेंगे, पास करेंगे। मेरा खाली ये निवेदन होगा, अभी 7:30 बजे कल इसको आप कल इसको पहला नंबर रखिए एजेंडा में और इसको हम पास करें। ओके, दैट इज द एश्योरेंस। कल करूंगा। मिनिस्टर बी रेडी फॉर टुमारो, वी विल पास इट टुमारो। नाउ admitted special mentions, come and help me. Mansukh Lal Mandavia. Yes, sir. Sir, my special mention is it that a complaint against jail staff by the prisoners. You can allow them to read or as you like. Sir, I want to read. Sir, I want to read. Yes. I want to read. Not the whole thing, please. I want to read, please. Just hurry up, please. There are many incidents of fake complaints being loaded by the prisoners against the jail security prisoners to be demoralize them. I understand that government of Gujarat has already approached the central government on the issue of the fake complaint. Silence in the house, please. Officers. The state government has suggested to Ministry of Homes following points. When it is provided that the applications made by the prisoners against the jail employees, officers is false and baseless. The procedure of the punishment should be followed as per the jail manual. For the prisoners convicts that the injustice in bombs blast or terrorist or anti-national activities, there should be restriction of the extent that the such prisoners shall not make any applications on any reasons. Any authorities except the concerned court. The prisoners convicts who injures in the bomb blast, terrorist or anti-national activities should be denied information under provisions of the RTI Act 2005. Thank you very I much. request central government to examine about the suggestion urgently and accordingly necessary actions may be please be taken. Thank you. Okay, sir. Thank you. Shri Motilal Vora ji, absent. Shri Hussain Dalwai ji, absent. Shri Vivek Gupta, absent. Shri P.L. Punya ji, absent. Shri Gulam Rasool Balyavi. सर, एक कॉपी में सभापति थोड़ा सा अच्छा ले कर रहे हैं। ओके, थैंक यू। पढ़ लेते हैं सर, शुक्रिया। अरे वो कर रहे हैं, आप बीच में मत बोलिए ऐसे। सर, आप महोदय आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आयोग पिछड़ा आयोग का गठन हुआ। थैंक यू। उसी तरह से राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का भी गठन हुआ है। अन्य आयोगों की तरह से इसको भी जो अधिकार मिलना चाहिए वो नहीं मिल सका है। थैंक यू। इसलिए मेरा मानना है कि सरकार इस पर गंभीरता से विचार करे। थैंक यू। और इसको प्रभावशाली बनाने के लिए उचित कार्रवाई करे। श्री अनिल देसाई जी, एब्सेंट। श्री प्रवीण राष्ट्रपाल, एब्सेंट। श्री विजय दद्दा जी, एब्सेंट। श्री रिपुन बोरा जी, you are laying? Just read the heading. I want to read, sir. Just the heading, please. So there was a proposal from Assam state government to set up Northeast Brahmaputra River Rejuvenation Authority to tackle the flood and erosion problem of Assam and Northeast states. Okay. But the central government has neither taken any initiative to set up the NEBRA for any scientific method of control flood and riverbanks erosion, nor has undertaken desiltation process schemes
Brahmaputra River through proposed Brahmaputra Valley River Basin Authority. Thank you. Thank you. Shri Vishambar Prasad Nishad, आप भी you can lead. उपसभापति महोदय, आपको अवगत कराना कि भारत कृषि प्रधान देश है। प्रतिवर्ष मौसम के असंतुलन से किसान बर्बाद हो रहा तथा लोगों को पीने के पानी तथा कृषि सिंचाई के लिए पानी की आज इस पे तो डिस्कशन हो ही गया था, बहुत अच्छे सब्जेक्ट है आपका। प्रत्येक मकान में हार्वेस्टिंग टैंक बनाए जाने का कानून बने तथा प्रत्येक खेत में कृषि के एरिया के हिसाब से बरसात के पानी को इकट्ठा करने के लिए सिंचाई हेतु सीमेंटेड पक्के टैंक बनाए जाएं, जिसकी व्यवस्था भारत सरकार करे और रखरखाव किसान स्वयं करे, जिससे खेत का पानी खेत में ही प्रयोग किया जा सके और बरसात का पानी नदियों से होकर समुद्र में चला जाता है, जिसको बचाकर बरसात के पानी का प्रयोग कर पीने के पानी एवं पूरे देश के किसानों को सिंचाई की व्यवस्था उपलब्ध कराई जा सके। इस प्रकार हम वर्तमान में बुंदेलखंड, लातूर, विदर्भ आदि प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में पड़ रहे भयंकर सूखे, अकाल से समस्या का मुकाबला कर सकेंगे और किसानों को आत्महत्या से बचाया जा सकता है। महोदय, मैं माननीय प्रधानमंत्री से मांग करता हूं कि राष्ट्रीय कृषि नीति बनाकर किसानों के लिए बरसात के पानी को इकट्ठा करने के लिए निःशुल्क भारत सरकार से प्रत्येक खेत में पक्के पानी के टैंक बनाए जाएं तथा पीने के पानी के लिए प्रत्येक घर में हार्वेस्टिंग टैंक बनाने हेतु आर्थिक सहायता प्रदान की जाए। बहुत अच्छा सुझाव है। श्री राजीव चंद्रशेखर एब्सेंट, श्री कनकलता सिंह एब्सेंट, श्री संजय राउत एब्सेंट, श्री चौधरी मुनव्वर सलीम। आप भी पढ़ेंगे? सर, मंडावी साहब की तरह मुझे पढ़ लेंगे। चलिए, आप भी पढ़िए। माननीय सभापति महोदय, मैं देश की लगातार कमजोर होती विदेश नीति के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्य इस सदन के सामने रखना चाहता हूं। नंबर 1, नेपाल जैसा हमारा पारंपरिक मित्र देश आज चीन की जानिब क्यों झुकता दिखाई दे रहा है। नंबर 2, अहमदाबाद में चीनी और भारतीय प्रधानमंत्रियों के बीच हिंदी चीनी भाई भाई के नारे के बावजूद संयुक्त राष्ट्र संघ में आतंकी हाफिज सईद के मामले में चीन ने भारत के खिलाफ वीटो पावर का इस्तेमाल क्यों किया। नंबर 3, जिस अमेरिका ने दुश्मन देश को आर्थिक मदद दी और वर्तमान प्रधानमंत्री को तात्कालीन मुख्यमंत्री रहते हुए वीजा देने से इनकार किया, आज उसे युद्ध के लिए देश की धरती क्यों दी जा रही है। नंबर 4, पाकिस्तानी प्रधानमंत्री के व्यक्तिगत पार्टी में मोदी जी के शामिल होने के बावजूद सीमा पार से आतंकवाद में कमी क्यों नहीं आई। नंबर 5, पठानकोट मामले में पाकिस्तान की जांच एजेंसी तो भारत आती है, लेकिन भारत की जांच एजेंसी को वहां जाने की इजाज़त हुकूमत पाकिस्तान द्वारा नहीं दी जाती, ऐसा क्यों। नंबर 6, आज़ाद भारतीय भूभाग की 17,160 एकड़ भूमि बांग्लादेश को क्यों दे दी गई। माननीय, भारत की पवित्र धरती किसी एक दल, एक संगठन, एक धर्म और एक व्यक्ति की धरोहर नहीं है, बल्कि करोड़ों भारतवासियों के मान, सम्मान और स्वाभिमान और राष्ट्र प्रेम की अलंबरदार है। इसलिए आपके माध्यम से इन तमाम सवालों के जवाब के साथ इन सभी मुद्दों पर राष्ट्रभक्ति का प्रमाण पत्र बांटने वाली सरकार से की विफलताओं के कारणों सहित निराकरण के लिए हुकूमत हिंद में द्वारा उठाए गए कदमों का मुल्क जवाब जानना चाहता है। धन्यवाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद। The House stands adjourned till 11 a.m. on Thursday, the 28th April 2016.